शुरू कर सकते हैं, राइट? लेट्स स्टार्ट देन। So, thank you everyone once again for joining us today for Saturday Satsang. Last week हमने कर्मयोग चैप्टर नंबर 3 up to श्लोक नंबर 21 कंप्लीट किया था, and from today onwards we are starting from श्लोक नंबर 22. So before we starting, as our ritual, we will do the Mangalacharan. So whoever knows, they can repeat after me, or repeat with me, sorry. And whoever doesn't know, they can just purely listen. It has same blessing or potencies. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshuram Militam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Gadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavamsha Shri Rupam Sadgrajatam Sahagana Lalita Shri Vishakha Vritamscha. We'll repeat one more time. Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sadgrajatam Sahagana Raghunatham Vritam Satam Sajivam Sadhuvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Shri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Pada Sahagana Lalita Shri Vishakha Vritamscha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratvise Namaha Shri Nityananda Avadhurtendur Vasudha Prana Vallabha Janava Jivitapatihi Krishna Prema Pada Prabhu Padmavati Shuta Shriman Sachinandana Purvaja Bhavonmatra Jagatrata Rakta Gaura Kalevaraha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesh Gopika Kant Radha Kant Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriye Namo Radhe Vrishalakshi Chandrakoti Samaprabha Shri Krishnam Samhitam Dehi Nityakunj Viharinim राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन वास सब द्वारन को छोड़ के आए तेरे द्वार
ओ वृषभानु की लाडली नख मेरी ओर निहार वाञ्छाकल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. So again, thank you very much for joining. So as we are doing last time, I just would like to hear कि आप मुझे बता सके कि हमने last week क्या discuss किया था. Anyone? Is there anyone who can recap? Prabhu, you told about कि जो लोग भगवान की शरण में होते हैं, so they don't have to worry about anything. That is the first look, yeah. And Further. then like we follow like whosoever is like how जैसे माता पिता हमारे रोल मॉडल होते हैं या कोई भी मतलब इंसान है वो कोई ना किसी तरह का रोल मॉडल होता है. तो जैसा कर्म वो करते हैं तो हम उसको फॉलो करते हैं. जैसे हम अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल हैं या टीचर अपने स्टूडेंट्स के लिए है या मैनेजर जो उनके नीचे काम करते हैं. तो वो चीज डिस्कस करी थी. Very nice. Did we miss something? If someone else want to put some light? We missed one small thing. And that from that onwards वहीं से हम आगे आज कंटिन्यू करेंगे. भगवान उसी को आगे ले जाएंगे. कोई और? Yeah, there are some undevotional way also with the devotional way of achieving the God. Yes, so moksha. Like, So there are yeah. yes. So there is one more Say part. 13 and 12. 13 and 12, yeah. Yes, कि जहाँ पे भगवान ने गीता के अंदर हमें it's not only the 11 devotional way. Yes. कि devotional is not the only the way you can reach the Godhead. There are undevotional way also. वो भी हमने डिस्कस किया था. और एक very important part. भगवान ने doing that you will miss the the connection with God, like how you get all the love and how you okay, like so doing the undevotional way. Benefits of going devotional way. Yes, that is true. Yes. Perfect. And then also, I don't know if you told about that Swarup Siddhant Bhakt, that so they kind of the same first point, that they don't have to worry about anything, like for example how Tukaram Maharaj or their things were getting उनकी सब जो मनोकामना है या उनकी सब पूर्ण हो रही थी. या जैसे नरसिंह मेहता का एग्जांपल दिया कि उनकी जो बेटी की शादी थी या तो उसमें भगवान ने सब कुछ उनका पूर्ण किया. या जो आपने द्रौपदी वाला एग्जांपल दिया था कि उसके अंदर जो भगवान आए थे, कृष्ण ने वो चावल के दाने से जो है उनका सबका जो है पेट भर दिया था. तो मतलब भक्तों को चिंता करने की जरूरत नहीं है बेसिकली कि भगवान उनका सब, अगर हम भक्ति करते हैं तो उनका सब कर्म खुद ब खुद होता जाता है. So like leave everything on Bhagwan. But Krishna says this thing, but he uses but he says. मैं उसी को ढूंढ रहा हूँ. That is what he mentioned. But he says all this thing. You are right. But और एक last चीज, everyone has recap very nicely actually.
very nicely. Everyone remembered everything. But एक यहाँ पे भगवान ने but कहा था, वो I'll put that one. So जैसे from 17 to 21 recap क्या था कि ओके कि स्वरूप सिद्ध भक्त या डिवोटी ऑफ द लॉर्ड doesn't need to perform the prescribed duties mentioned into the Vedas. जो वेदों के अंदर प्रिस्क्राइब ड्यूटीज बताई गई है वर्णाश्रम के अंदर, उनको वो करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान उसको ही विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग. इवन दे मिस एनीथिंग, अगर वो कुछ भूल भी जाते हैं या उनका अगर कुछ त्रुटिमय होता है, तो भी भगवान विल टेक केयर ऑफ दैट. भगवान उसको अपने सर पे उठा लेते हैं. एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो मुझे याद आया, मैंने यहाँ पे कोट किया है कि श्री रामचरितमानस में एक प्रसंग आता है जो मैं बहुत बार कोट करता हूँ कि वहाँ पे बाली को जब तीर लगता है, भगवान बाली को तीर चलाते हैं, रघुनाथ जी बाली के ऊपर तीर चलाते हैं, और देन देयर इज अ डिस्कशन हैपेंस एंड बाली को पहले बहुत गुस्सा आता है कि आपने मुझे, मैं एक शूरवीर हूँ, मैं एक योद्धा हूँ, आपने मुझे पेड़ के पीछे से एक कायर की भांति क्यों मुझ पे प्रहार किया. आई डिजर्व टू बी शॉट फ्रॉम द फ्रंट. तो फिर भगवान उसको एक एक उसके जो लांछन है उसका उत्तर देते हैं. तब बाली बहुत पैसिफाई हो जाता है, बाली भक्त बन जाता है. और उस समय भगवान उसे कहते हैं कि नाउ सिंस यू बिकेम डिवोटी, यू डोंट नीड टू डाई राइट नाउ. जैसे मैंने कल सुग्रीव को ठीक कर दिया था, मैं इसी वक्त तुम्हें भी ठीक कर देता हूँ, एंड यू कैन जॉइन अस फॉर आवर फर्दर मिशन. तब बाली भगवान को कहते हैं कि प्रभु, ऐसा मौका कब आता है कि जब आप स्वयं सामने खड़े हो. यानी इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इवन डाई. जब हम मरते हैं उस समय हमारे जिह्वा पे भगवान का नाम आए, वो बहुत बहुत मुश्किल है. बाली रामचरितमानस में तुलसीदास जी इस दोहे को इस तरह गाता है कि जन्म जन्म मोहि जतन कराही, अंत में राम मुख आवत नाही. कहते हैं कि जन्म जन्म मुनि साधु सन्यासी जतन करते हैं कि भाई भगवान भगवान का नाम अंत में मुख पे आ जाए, लेकिन वो आता नहीं है. लेकिन भगवान क्या करते हैं, भगवान वराह पुराण के अंदर और चीज कहते हैं. भगवान कहते हैं कि अगर किसी कारणों के अनुसार, अगर मेरे भक्त की सिचुएशन खराब है, अगर मृत्यु के समय उसकी फिजिकल सिचुएशन, उसको अगर उसका शरीर उसे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, या किसी कारणवश किसी भी दुविधा के अंतर्गत अगर मेरा भक्त अगर मुझे याद नहीं कर पाता, तो वराह पुराण के अंदर भगवान वराहदेव कहते हैं कि आई प्रॉमिस कि मैं खुद आऊंगा और मेरे भक्त को ले जाऊंगा. सो दैट इज व्हाट द कनेक्शन भगवान गिविंग दैट कि भक्त के ऊपर कुछ छोड़ते नहीं है. वंस यू सरेंडर टू द लॉर्ड, अगर आपने भगवान की भक्ति शुरू कर दी, तो भगवान कहते हैं कि उनके लिए करने योग्य कुछ रह नहीं जाता है. बिकॉज इवन दे लैक समथिंग. जैसे बहुत सिंपल सी बात है कि मरने के समय भगवान का नाम आपकी जिह्वा पे आए तो आपकी मुक्ति निश्चित है, आप इस संसार में वापस नहीं आओगे. लेकिन अगर किसी कारणवश अगर वो हो नहीं पाया, तो वो इतनी छोटी से छोटी बात जिसके लिए भक्त तरसता रहता है, भगवान कहते हैं वराह पुराण में कि आई विल कम and take him personally. So he don't need to worry about, even though he is not or he forget to chant about me. So but still, ये but जो है मैं जो सुनना चाह रहा था, but still to be a role model or to set up an example in society, devotee should perform all the prescribed duties. जैसे भगवान ने एग्जाम्पल दिया किंग जनक का, कि जनक इतने बड़े भक्त थे कि उनको कुछ ये सब करने की जरूरत नहीं थी, फिर भी जनक अपने नित्य जो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज थे, अपने जो वर्णाश्रम के अधीन हुए जो जितने भी कर्म थे, जनक वाज फॉलोइंग एग्जीक्यूटिंग परफेक्टली. क्यों? क्योंकि जैसे राजा बिहेव करता है, जैसे लीडर बिहेव करते हैं, वैसे ही उसके फॉलोअर भी बिहेव करते हैं. अगर राजा ही ये सब छोड़ देगा, तो जितने जो उसके फॉलोअर है उनको भी लगेगा हाँ हाँ हम भी भक्त हैं, देखो हम भी भगवान को पुष्प चढ़ा रहे हैं, हम भी बहुत बड़े तिलक लगा रहे हैं, बहुत बड़े धोती कुर्ता पहन रहे हैं, हम बहुत बड़े सन्यासी हैं, हमें ये सब करने की जरूरत नहीं. लेकिन जनक राजा भक्त होते हुए भी अपने सभी कार्य को नियत तरीके से करते थे. इसीलिए टू सेट अप द एग्जाम्पल कि जैसा वो करेंगे वैसे उनकी जनता करेंगी. भगवान राम, उनको कहने करने के लिए वैसे कुछ बचा नहीं था, वो तो स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम थे, लेकिन फिर भी ही वॉज एग्जीक्यूटिंग ईच एंड एवरी रोल जो उनके जीवन में आया. जैसे एक
पुत्र का रोल आया, एक पति का रोल आया, एक राजा का रोल आया, एक शरणागत वत्सल का रोल आया। ईच एंड एवरी रोल ऑफ रामायण को, रामायण इज जस्ट अ रोल मॉडल। इसलिए कहते हैं कि भारत का चेहरा जो था वो राम था, क्योंकि भारत वाज बिहेविंग एज द राम वाज बिहेविंग, बिकॉज दैट इज व्हाट द रोल मॉडल। इसीलिए हमारे संस्कृति के अंदर रामायण को इतने अच्छी तरीके से बुना गया था पहले के जमाने में, कि साल में कुछ भी हो तो राम की कथा, रामायण का पारायण, श्रावण मास शुरू हुआ तो रामायण की कथा शुरू हो गई। तो बच्चों के अंदर, बड़ों के अंदर, बूढ़ों के अंदर, पति पत्नियों के अंदर, बहनों के अंदर, हर जगह जो रोल मॉडल थे वो रामायण से ही उभर के आते थे। तो उनको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी कि हाउ दे शुड परफॉर्म और हाउ दे शुड बिहेव इन द डे टू डे लाइफ, बिकॉज दे हैव द रोल मॉडल रेडी फॉर दैट। लेकिन अब क्या हुआ, उन सबका जो स्थान था, जो जहाँ पे रोल मॉडल्स रामायण से निकलते थे, वो सबका स्थान मूवीज ने ले लिया, क्रिमिनल वेब सीरीज ने ले लिया, बिग बॉस ने ले लिया। तो यू नो पीपल, they are not doing it directly, they are not following those role model directly, but their mind unconsciously, उनके अंदर वो रोल मॉडल बनते जाते हैं, and their behavior is naturally is going to follow them, because each and every time those thing is hitting in your mind। आप समझ रहे हो? सो इसलिए भगवान ने एग्जांपल दिया कि बड़े मुझे आगे भगवान आगे श्लोक में कहेंगे कि मुझे भी ये सब करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आई परफॉर्म फॉर द सेक ऑफ द पॉपुलेशन टू गो इन द राइट डायरेक्शन, ऑन द राइट पाथ। सेम डिस्कशन कृष्णा भी आगे फॉरवर्ड करेंगे। एनी पॉइंट्स और एनी क्वेश्चंस ऑन दिस वन? ठीक है, तो आज के श्लोक शुरू करते हैं फ्रॉम 3.22। नमे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नन्वप्तम अवप्तव्यम वर्ता एव च कर्मणि। तो भगवान कह रहे हैं कि हे प्रथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। जैसे मैंने भगवान राम का उदाहरण दिया, भगवान कह रहे हैं कि हे प्रथापुत्र अर्जुन, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है क्योंकि वो तो भगवान है, और ना आवश्यकता है, उनको किसी चीज की आवश्यकता भी नहीं है, वो तो सेल्फ सेटिस्फाइड है। तो भी मैं नित्य कर्म करने में तत्पर रहता हूं कि तुम्हें अपना कर्म करना ही चाहिए। प्रभुपाद आगे समझाते हैं अपने पर्पट में, वो कहते हैं कि वैदिक साहित्य में भगवान का जो वर्णन है कुछ इस प्रकार है। यहाँ पे भगवान की डेफिनेशन दी गई है कि भगवान के पास ये दिस इज हिज क्वालिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक, बट स्टिल ही परफॉर्म व्हाट ही सपोज टू परफॉर्म। तो श्वेताश्वता उपनिषद के अंदर ये श्लोक आता है कि तमेश्वरानाम परमं महेश्वरम तं देवतानां परमं च दैवतम् पतिं पतीनां परमं परस्तद् विदाम देवां भुवनेश इद्यम् न तस्य कर्यं करणं च विद्यते न तत्समासा च भयादिकक्षधीर्दृश्यते परास्य शक्तिर्विविधैव शूर्यते स्वाभाविकी ज्ञान बाला क्रिया च। इसका ट्रांसलेशन कोई पढ़ेगा आप में से? I can go for it. I was expecting you, Mataji. Hare Krishna. Hare The Krishna. Supreme Lord is the controller of all other controller, and he is the greatest of all the diverse planetary leaders. Everyone is under his control. All entities are delegated with particular power only by the Supreme Lord. They are not supreme themselves. He is also worshipable by all demigods and is the supreme director of all directors. Therefore, he is transcendental to all kinds of material leaders and controllers and is worshipable by all. There is no one greater than him, and he is the supreme cause of all causes. He does not possesses a bodily form like that of an ordinary living entity. There is no difference between his body and his soul. He is absolute. All his senses are transcendental. Any one of his senses can perform the action of any other sense. Therefore, no one is greater than him
or equal to him. His potencies are multifarious, and thus his deeds are automatically performed as a natural sequence. Since everything is in full opulence in the personality of Godhead and is existing in full truth, there is no duty of the Supreme Personality of Godhead to perform. Yet Lord Krishna is engaged on the battlefield of Kurukshetra as the leader of the Kshatriyas because the Kshatriyas are duty bound to give protection to the distressed. Although he is above all the regulations of the revealed scriptures, he does not do anything that violates the revealed scriptures. Hare Krishna. Hare Krishna. So exactly. So this slok, what it says the glories of Bhagwan. Bhagwan, everything what you think of beyond that he is carrying. And forget about other his opulence कि वो greatest of the great है, वो सभी देवी देवताओं के ऊपर है, वो सभी के ऊपर है, right? यहाँ पे उनकी body की भी qualities बताई गई है कि his body is transcendental. His body is not like us कि हमारी soul अलग है और body अलग है. He is made of complete सच्चिदानंद विग्रह. वो सच्चिदानंद है, उसकी बॉडी एंड सोल में कोई अंतर नहीं है. फॉरगेट अबाउट दैट, सी दिस मैकेनिज्म. उसकी भगवान की जो इंद्रियां है वो भी, अवर आईज कैन ओनली सी, अवर ईयर्स कैन नॉट सी, बट भगवान के तो कान भी सुन सकते हैं और आंख भी सुन सकती है, right? There is an example, just to give you example of Bhomasur in 10th canto, when भगवान गरुड़ पे बैठ के सत्यभामा जी के साथ वो 16,000 राजकुमारियों को जो छुड़ाते हैं, that Bhomasur got birth from just glance of Varahadev and Bhumi Devi. So भगवान की हर एक इंद्रिया हर कुछ करने के लिए सक्षम है. They are not bound to anything. So basically he don't need to perform anything, but still at the battlefield of Kurukshetra भगवान अपना रोल अदा कर रहे हैं. किसका? एक मित्र का. किसका? एक लीडर ऑफ द क्षत्रियो का. और वही अर्जुन को समझा रहे हैं. देखो, मुझे भी कुछ करने की जरूरत नहीं है. अगर मैं चाहूं तो ये सिर्फ एक अपनी भ्रुकुटी को घुमाऊं भी नहीं और ये पूरा कुरुक्षेत्र खत्म हो जाएगा. The people all will die immediately, but still I don't go out of the book. I follow the prescribed rules and regulation जो मैंने अपने लिटरेचर में, अपने स्क्रिप्चर्स में रिवील किया है. सो वो खुद भी अपने लॉ बुक के हिसाब से चलते हैं. He don't deviate from them, and that's what he's expecting. कि आप कितने भी बड़े भक्त हो, आप कितने ही बड़े स्वरूप सिद्ध हो, भगवान कह रहे हैं जब मैं अपने सभी ड्यूटीज को फॉलो कर रहा हूँ, he says that you should also perform the same thing. That is what the entire mood of telling this shloka. Moving to the next one, 3.23. यदि ही अहम न वर्तये जातु I cannot read actually half because my screen is broken. Sorry. Yeah. यदि ही अहम न वर्तये जातु कर्मण्य अतंद्रितः मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः. भगवान कह रहे हैं कि क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ पर ही अनुगमन करेंगे. जैसे भगवान राम ने उसी को एग्जीक्यूट किया. भगवान ने अपने हर नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक, उनका बोलना, उनका चलना, उनका बिहेव करना, उनका बैठना, वो हर चीज को सावधानी पूर्वक करते थे. क्यों करते थे? क्योंकि वो जानते थे कि जितने पीछे मनुष्य है, दे विल फॉलो, दे विल उनको उनका ही अनुगमन करेंगे. दैट्स व्हाट भगवान से थे कि क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो निश्चित रूप से सारे मनुष्य जो मेरे पथ पे अनुगमन करेंगे उनका भी डिस्ट्रक्शन होगा. मूविंग टू 3.24. उत्सिदेयुर, okay, I have to, yeah. उत्सिदेयुर इमे लोका नाकेयुरम कर्म चेदहम संकरस्य च कर्तस्यम उपहन्यम इम प्रजाः. ये बहुत बड़ा एक्चुअली श्लोक है. विल अंडरस्टैंड दिस स्टेप बाय स्टेप. कि यदि मैं नियत कर्म को न करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएंगे और तब मैं अवांछित जन समुदाय को उत्पन्न करने का कारण बनूंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाश बनूंगा. ये श्लोक is connected to today's world. This श्लोक is very profound. ये मैं नियत कर्मों को ना करूं तो सारे लोग नष्ट हो जाएंगे. दिस इज कैरीड फ्रॉम द प्रीवियस श्लोक 3.23 में भगवान ने यही कहा है.
और 3.24 में भगवान ने कौन सी चीज ऐड की है कि मैं वो सब कर्म क्यों करता हूँ या क्यों लोगों को फॉलो करने को कहता हूँ? क्योंकि अगर मैं ना करूं तो क्या होगा? मैं अनुवांछित जन समुदाय, वर्ण संकर जो कहा जाता है, को उत्पन्न करने का कारण बनूंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाश बनूंगा। आप में से कोई बता सकता है कि वर्ण संकर क्या है? और ये शब्द थोड़ा सा अपने मेमोरी पे से धूल निकालिए। दिस वर्ड इज बीन कोटेड इन चैप्टर नंबर 1। अर्जुन ने यही चीज भगवान को कही थी। कब कही थी? अर्जुन ने भगवान से कहा था कि प्रभु, मैं इस घास्टी किलिंग वेलफेयर के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर मैंने इन सब क्षत्रियों का विनाश किया तो मैं वर्णशंकर का कारण बनूंगा और वर्णशंकर के कारण जो पुरखे हैं वो भी गिर जाएंगे एंड दैट एंटायर सोसाइटी विल बी कोलैप्स्ड। तब भगवान ने उनको कहा था कि यू शुड परफॉर्म योर ड्यूटी, यू डोंट थिंक अबाउट दैट पार्ट एट दिस पॉइंट। और भगवान उसी को भी वापस से ले अर्जुन को समझा रहे हैं कि इफ आई डोंट डू परफॉर्म द यज्ञ, सो वहां पे अर्जुन क्या था? अर्जुन कर्म से भाग रहा था और कह रहा था कि इफ आई डोंट इन्वॉल्व इनटू द किलिंग वेयरफेयर और इफ आई डू इन्वॉल्व इन द किलिंग वेयरफेयर, क्या होगा कि मैं वर्ण शंकर को क्रिएट करूंगा। भगवान ने कहा ऐसा नहीं है। यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं? इफ यू डोंट इन्वॉल्व इन द किलिंग वेयरफेयर, राइट, यू विल बी अ रोल मॉडल फॉर क्रिएटिंग द वर्ण शंकर। तो यहाँ पे कोई बता सकता है कि वर्ण शंकर का मतलब क्या है? હું કહું સંદીપભાઈ? यस सिंधु भाभी। કુળનો નાશ થાય, ધર્મનો નાશ થાય, ધર્મનો નાશ થતા પાપનો વધારો થાય, પાપનો વધારો થવાથી કુળની સ્ત્રીઓ વ્યભિચારિણી બને, પછી વર્ણશંકર પ્રજા ઉત્પન્ન થાય, જે કુળમાં વર્ણશંકર પ્રજા ઉત્પન્ન થાય તે કુળનો નાશ થાય અને નરકમાં જાય. Okay, but my point is वर्ण संकर नो मतलब हूँ। You said what are the causes, right? What is वर्ण संकर? देखिए, मैं इसलिए ये बार बार डिटेल में पूछ रहा हूँ क्योंकि अगर हम इसको समझेंगे ना, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक, अगर इसको अच्छे से डिकोड करके समझेंगे देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट कृष्णा इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन और वो कहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा है। और किसी के कोई कहना चाहता है? समवन एल्स? વર્ણશંકર એટલે જે બ્રાહ્મણ જ્ઞાતિના હોય એ પેલા ક્ષત્રિય સાથે એ થાય કે વોર થાય એટલે બધું બગડી જાય એમ, એટલે એના લીધે वॉर માં નહીં જવાના આપણે, but that's good. Okay, so this is one category of example Pragya Devi has mentioned. So first of all, how many of you believe in the horoscope match for the wedding? Be honest. I believe. Okay. I believe too. Prabhuji. Yes, Mata Joshi, Shweta Mataji. Me Yes. too. I'm also believing. Perfect. And Raghav also believe. Okay, nice. So many of you believe, and who don't believe? I'm not very sure. No, that's Why very they- no, you have to be honest. That's very nice. But after understanding this shloka, you will understand why the horoscope match definitely from the professional, not from like chila chalu people, why it is important, because it is a science. और ये यहाँ पे समझ में आएगा आपको। और कोई है? Whether they believe or not, whether they don't believe? I believe. Okay, ठीक है। तो हम आगे के जो रेफरेंस दिए गए हैं वो श्रीमद् भागवतम में से है, and then that will make you clear. So from 9.18.23, this is pratiloma and anuloma, which Pragya Devi has explained. But there are two kind of things in Varna Shankara. भगवान ने क्यों कहा? भगवान ने क्या कहा कि it is not going backward. अगर मैं नित्य कर्म न करूं तो सारे लोग नष्ट हो जाएंगे। देखिए, भागवत गीता के अंदर भगवान ने कहा है कि मैंने चतुर्वर्ण मया सिस्टम गुण कर्म विभागशः, मैंने 4 वर्ण और 4 आश्रमों को हिसाब से, आपके गुण और कर्म के हिसाब से आपको 4 वर्ण और 4 आश्रमों के अंदर बांटा है।
चतुर्वर्णमया सिस्टम गुण कर्म विभागशः, आपके गुण के हिसाब से, यानी अगर किसी के अंदर पैशन है तो उसको क्षत्रिय बनाया गया है। किसी के अंदर सत्वगुण ज्यादा है, इंटेलेक्चुअल ज्यादा है, ही पुट इनटू द कैटेगरी ऑफ ब्राह्मण। किसी के अंदर व्यापार की क्षमता ज्यादा है, उसको वैश्य में रखा गया है। एंड द पीपल, सो शूद्र इज नॉट बेसिकली अ लोअर कास्ट। भगवान कहते हैं कि शूद्र वो कैटेगरी है who is very much attached to the sense gratification, the people who cannot think beyond the sense gratification, the people who cannot think beyond their belly, खाने के अलावा और कुछ उनको सोचता नहीं है, the people who cannot take the responsibility, who are meant to serve others, they are shudra. So shudra is not only one people, shudra is a different kind of category, they all belongs to the shudra category. तो वो शूद्र है। तो लेकिन अभी जिसको ब्राह्मण कहा गया, जिसको क्षत्रिय कहा गया, जिसको वैश्य कहा गया और जिसको शूद्र कहा गया, आगे क्या हुआ कलयुग के अंदर, जो ब्राह्मण से वो कंटेमिनेट हो गए। उन्होंने कहा कि whoever take a birth into the Brahman family they become ब्राह्मण। क्षत्रिय से okay, whoever take a birth into the king family they are क्षत्रिय। और वैश्यों ने कहा कि चलो जो हमारे कुल में जन्म लिया वो वैश्य है। ऐसा नहीं है एक्चुअली। जो इंसान ब्राह्मण के घर पे जन्म लिया, अगर उसने ब्राह्मणत्व को फॉलो नहीं किया तो ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। जज का बेटा विदाउट फॉलोइंग द लॉ और विदाउट passing the LLB and practicing the law as a lawyer, he cannot become a judge. Similarly, ब्राह्मण का लड़का सिर्फ जनोय धारण करने से ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। क्षत्रिय का लड़का सिर्फ क्षत्रिय कुल में जन्म लेने से क्षत्रिय नहीं कहलाएगा। He has to learn how to fight, he has to learn the politics, he has to learn the शास्त्र, he has to learn the administration, तो वो क्षत्रिय कहलाएगा। तो जन्म लेने से कुछ नहीं होगा, आपको उस पथ के ऊपर चलना पड़ेगा, आपको उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, देन ओनली यू विल गेट द क्वालिटी ऑफ दैट वर्ण। अगर आप क्षत्रियत्व को फॉलो करेंगे, उसको प्रैक्टिस करेंगे, फाइट करेंगे, वॉर करेंगे, पॉलिटिक्स को लर्न करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, इन दैट फैशन यू विल गेट दैट वर्ण इनटू योरसेल्फ, और आपकी वो क्वालिटी जो है उसको पॉलिश होकर निखर के आएगी। वैसे ही ब्राह्मण अगर शास्त्रों का अध्ययन नहीं करेगा, गायत्री नहीं करेगा, संध्या वंदनम नहीं करेगा, तो वो ब्राह्मण नहीं कहलाएगा, उसको वो ब्राह्मणत्व को फॉलो करना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा कि जो वर्ण, पहला तो आपको वर्ण मिला है, कैसे? आपके गुण के हिसाब से। किसी के अंदर वो इंटेलेक्चुअल होता है, कोई बहुत शार्प होता है बुद्धि से, लेकिन अगर उस बुद्धि को उसने सही दिशा में लगाया नहीं तो ब्राह्मणत्व को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। अगर किसी के अंदर वॉरियर स्किल है, ही इज वेरी गुड बिल्ड, बट अगर उसको सिखाया नहीं गया और अगर उसने क्षत्रियत्व को फॉलो नहीं किया तो वो एक क्षत्रिय नहीं कहलाएगा। तो भगवान यही कह रहे हैं कि अगर आप अपने कैसे नियत कर्म, वर्ण और आश्रम के हिसाब से जो आपके नियत कर्म है, ब्राह्मणत्व को आपने प्राप्त किया, लेकिन अगर एक ब्राह्मणत्व को फॉलो नहीं किया, आपने उस कर्म को एग्जीक्यूट नहीं किया, तो आपके अंदर वो क्वालिटीज नहीं आएगी। और वर्ण शंकर क्या है? जब वो क्वालिटीज नहीं आएगी तो आपके अंदर वो गुण नहीं आएंगे। एंड देन इफ द इंटर वर्ण मैरिज इज गोइंग टू परफॉर्म, किसी का अनम्यूट है, इफ यू कैन म्यूट, अगर इंटर वर्ण मैरिज इज गोइंग टू परफॉर्म, इट इज नॉट दैट एडवाइजेबल। व्हाई? we'll learn in the next one, means the purport. If someone want to read just paragraph and then we'll discuss and we'll move to the next paragraph. I will read it. Yes, please. So According- wait, so far you understand what I have said? आपको समझ में आया मैं क्या समझाया अभी तक? Okay, ठीक है, then we'll move to 9:18. This is in Srimad Bhagavatam, chapter number 9, sorry, skandha number 9, chapter number 18, text number 23. जी पढ़िए please. According to the Vedic system, the parents would consider the horoscopes of the boy and girl who were to be married. If according to astrological calculations, the boy and girl were compatible in every respect, the match was called Yotaka, and the marriage would be accepted. Even 50 years ago, this system was current in Hindu society. Regardless to the affluence of the boy or the personal beauty of the girl, without this astrological compatibility, the marriage would not take place. A person is born in one of the three categories known as Devgan, Manushyagan, and Rakshasgana. In different parts of the universe, there are demigods and demons, and in human society, also some people resemble demigods, whereas others resemble demons.
If according to astrological calculations, there was conflict between a godly and a demoniac nature, the marriage would not take place. Similarly, there were calculations of Pratiloma. Pratiloma and Anuloma explained Bas, on. now just stop here. So पहले पैराग्राफ में प्रभुपाद समझा रहे हैं कि इन आवर एंशिएंट टाइम और इन आवर फैमिली हिस्ट्री और आवर एंसेस्टर यूज्ड टू क्या करते थे कि हॉरोस्कोप मैच करवाते थे. एंड देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ आई थिंक 7 काइंड ऑफ कैटेगरीज जिसके अंदर आपके गुण मैच होने चाहिए. एंड इफ इट इज अ गुड मैच देन दे मूव फॉरवर्ड. जो मेजर एरिया था उसके अंदर यहाँ पे प्रभुपाद समझा रहे हैं कि अ पर्सन बॉर्न इन द 3 कैटेगरीज. जनरली आप अपना एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट देखेंगे ना तो पता चलेगा आपको कि आप किस कैटेगरी के अंदर हो. आप देवगण के अंदर हो, आप मनुष्य गण के अंदर हो, या आप राक्षस गण के अंदर हो. तो इस हिसाब से भी एक कंपेलेबिलिटी होती है. अगर आप देवगण के हो और आप अगर मनुष्य गण के साथ शादी करते हो तो स्टिल ओके. अगर आप मनुष्य गण के हो, देवगण के साथ करते हो तो स्टिल ओके. लेकिन अगर आप राक्षस गण के हो और अगर आप मनुष्य गण के साथ शादी करते हो, अगर लड़की मनुष्य है, सपोज लड़की इज राक्षस गण, द गाय इज मनुष्य, तो क्या होगा? द लड़की इज गोना क्रिएट लॉट ऑफ उत्पात, द गाय's लाइफ इज गोइंग टू बी हॉरिबल. If the girl is Rakshasa or girl is a Devgan and the boy is a Rakshasgan, then what will happen is a daily fight. Both in the same potency, one but opposite nature. तो उनके बीच में बहुत fight होगी. यहाँ पे प्रभुपाद क्या रहे कि there were the calculation of Pratiloma and Anuloma. Pratiloma is ये जिसके अंदर ये वर्ण आता है. तो प्रतिलोमा और अनुलोमा को समझने के लिए विल गो ऑन द नेक्स्ट पेज. आप इसको पढ़िए, श्रीमद् भागवतम चैप्टर नंबर स्कंद नंबर 11 चैप्टर नंबर 20 टेक्स्ट नंबर 2. प्रतिलोमा और अनुलोमा को समझिए. Can I read it? Yes, please. Pratiloma indicates the combination of a superior woman with an inferior man. For example, the Vaidihaka community consists of those born of a Sudra father and Brahmana mother, whereas the Sutas are those born from a Kshatriya father and a Brahman mother, or from a Sudra father and Kshatriya mother. Just one pause. Just wait a second. ये किसी को याद आ रहा है Sutas? Who is Sutas? Is a very famous character. Anyone remember this character? कर्ण को हर लोग क्या कहते हैं? सूद पुत्र. Is not सूद पुत्र. In Mahabharata of B.R. Chopra they call it a सूद पुत्र. He is not a सूद पुत्र. He is a सूद पुत्र. Go ahead. Because he is coming into that Vaidehika. That's why he was been called as Suta Putra, because it is, see, Varna Shankara is so big deal at that time कि उसको उस time उस community को कहा था कि you are Suta Putra, not a Suta Putra. कर्ण को हर बार कहा था because you are Varna Shankara, you are not Kshatriya 100%. You are born from the Shudra mother and from the Kshatriya father. Go ahead. Anuloma indicates those born from a superior father and inferior mother. The Murtavastika are those born of a Brahman father and Kshatriya mother. Ambasthas are those born from a Brahman father and Vaishya mother, and they often become medical men. Karana indicates those born of a Vaishya father and Sudra mother, or a Kshatriya father and Vaishya mother. That such mixing of caste is not very much appreciated in the Vedic culture is demonstrated in the first chapter of Bhagavad Gita. Arjun was very worried that the death of so many Kshatriyas on the battlefield would lead to the mixing of superior women with inferior men, and on those grounds he objected to fighting. Perfect. So everyone understood what is Pratiloma and Anuloma, right? Which so one more example. Prabhuji, little bit confused now. Yes, please go ahead. जो कर्ण थे वो तो
कुंती के ही पुत्र नहीं पुत्र सबको थे। पर सबको पता नहीं था ना माता, उस समय सबको पता नहीं था, तो उनको क्या लगता था कि ये राधे और संजय के पुत्र हैं, तो इसीलिए उनको सूत पुत्र कहा जाता था. Everyone doesn't know that he was a Kunti putra, right? If everyone knows in the beginning, then they would not call him. तो ये महाभारत होता ही नहीं था. He would be on this side बट and कृष्ण जी को तो पता था, तो उन्होंने क्यों नहीं कहा? he knows everything, but there is, आप जब मूवीज देखने जाते हो सस्पेंस पिक्चर, राइट, उसमें डायरेक्टर को सब कुछ पता रहता है, बट डायरेक्टर पहले आके थोड़ी कहता है कि भैया ये सस्पेंस है, चलो आप ट्रेलर शुरू करो, राइट, देन जी। you would, right? Yes. ओके, तो यहाँ पे दूसरा भी एक एक्सप्लेनेशन है, जैसे मीरा थी, राइट, मीरा, विदुर महाराज, वेद व्यास. सो मीरा जी का जो शादी हुआ था, मीरा was actually a Brahmanical girl who was married to the Kshatriya family, right? And that's the reason there was a lot of conflict happened, because people on other side was not able to understand the Kshatriya family, and that's the reason Meera had a lot of problem. Similarly, Vidur Maharaj is also Varna Shankara. They are great personality, but Vidur Maharaj की जो उनके जो पिता थे वो एक्चुअली व्यास देव थे, और उनकी जो माता थी वो दासी थी. दासी पुत्र। is another Varnashanga. वेद व्यास महाराज, वेद व्यास थे, वो महाराज पराशर के पुत्र थे. महाराज पराशर was a great ऋषि, और उनकी जो माता थी वो सत्यवती, वो एक फिशरमैन की कन्या थी, तो शूद्र माता. These are the great personality, but again, neither Krishna, neither our literature was recommending this thing, Varna Shankara. Why? वो आगे हम पढ़ेंगे. Let's continue. The central idea is that, and why they were not recommending, वो यहाँ पे लिखा है कि the, is anyone want to read or I can continue? I can read it. Yes, yes. Hare Krishna. The central idea is that if the boy and girl were on an equal level, the marriage would be happy, whereas inequality would lead to unhappiness. Because care is no longer taken in marriage, we now find many divorces. Indeed, divorce has now been a common affair, although formerly one's marriage would continue lifelong, and the affection between husband and wife was so great that the wife would voluntarily die when her husband died, or would remain a faithful widow throughout her entire life. Now, of course, this is no longer possible, for human society has fallen to the level of animal society. Marriage now takes place simply by arguments. Agreements. 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 So, Bhagavad, Srimad Bhagavatam Yes. 12.2.3. ये मैंने If- नीचे कोट किया है, नीचे. You Okay. finish that one and then we can read that what it says exactly. Yeah. Okay. If the boy and girl simply agree to marry, the marriage takes place. But when the Vedic system is not rigidly observed, marriage frequently ends in divorce. See, one second. So here, what Prabhupada trying to explain that कि वर्ण शंकर के लिए भगवान इतने ये क्यों थे? क्योंकि अगर वर्ण शंकर हुआ, right? So then people is not able to understand actually the compatibility between the families, and then right now what is happening कि अब एक दूसरे को पसंद आया, या चलो किसी का सैलरी अच्छा है, किसी का बिजनेस अच्छा है, and we, और या you like each other or you like each other, and that's it, the marriage is performed, right? They don't care about checking the kundli or matching the gun and all these things. और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि डिवोर्स की जो रेशियोज है, बेसिकली द टॉलरेंस का रेशियो है वो नहीं हो रहा, क्योंकि अगर एक ब्राह्मण लड़की है, अगर उसका गुण ब्राह्मण है, और अगर वो शादी कर रही है किसी शूद्र कैटेगरी के लड़के से, आई एम नॉट सेइंग शूद्र बाय द कास्ट, बाय द गुणा, तो क्या होगा, this person is never able to understand the intellectual or the पवित्रता और उसका जो cleanliness है, उसका जो रहने का ढंग है, वो समझ ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये लड़की को सब neat and clean in a pious way, in a uplifted way, उसको सतोगुण वाला रहना चाहिए, और ये बंदा रहेगा वो completely lower category का रहेगा. So there is always a conflict. Similarly, when there is a kshatriya kind of guy, and there is a when there is a kshatriya kind of lady, and when it's coming to the brahman kind of family, that is good. That is in, because that is called anuloma, वो नीचे से ऊपर आ रही है, that is always going to be a mix,
and match, but still it is recommended. But Pratiloma is never been recommended. प्रभुपाद ने यहाँ पे जिक्र किया है श्रीमद् भागवतम के चैप्टर नंबर 12, जिसके अंदर सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को समझा रहे हैं कि कलयुग में क्या क्या होने वाला है. He has mentioned everything into this chapter number 12 that how the Kalyug is going to behave. और उसका एक simple example यहाँ पे लिखा गया है कि man and woman will live together merrily because of superficial attraction. In bracket I would put right now उसको क्या कहते हैं, living relationship. Yes. And success is business will be depend on decade, in the sense कि आप कितनी चोरी कर रहे हो वो आपका सक्सेस माना जाएगा कि अच्छा इतना चोरी किया, इतना लोगों को लूटा, इतना टैक्स का चोरी किया, ओके देन इज अ गुड सक्सेसफुल बिजनेसमैन. सो सक्सेस ऑफ बिजनेस विल बी डिपेंड्स ऑन द डेकेड. वुमनलीनेस एंड मैनलीनेस, यानी आप कितनी वुमनलीनेस है या आप कितने मैनलीनेस है, विल बी जज अकॉर्डिंग टू द वंस एक्सपर्ट इनटू द सेक्स ओनली. एंड अ मैन विल बी नोन एज ब्राह्मणा जस्ट बाय वेयरिंग हिज थ्रेड. अगर उसने यज्ञोपवीत धारण किया है, that's it, वो ब्राह्मण है. doesn't matter whether he follow the brahmanical rituals or not. So ये कलयुग का degradation है, which is mentioned in Srimad Bhagavatam. I hope everyone is clear why Krishna was so worried about Varna Shankara. क्योंकि people is not going to follow their ashrama, then the Varna Shankar is going to happen, and there's this fight in the family, and there is a fight and divorce and everything is going to happen, and then the kids is going to appear from them. They don't know what is, they have some sort of limited of Kshatriya, they might have limited of Shudra. While अगर वो क्षत्रिय और क्षत्रिय में से अगर कोई अच्छा पहले के जमाने में देखिए अच्छा कुल देखा जाता था, राजा क्षत्रिय क्षत्रिय में ही शादी होती थी. They find that okay, the match is perfect, then the kids is going to come as a great king. They are great rulers, they are detached, they are Raj Rishis. Brahman की शादी हुई तो they are all intellectual categories coming out of that generations. So that is all used to be happen perfectly. But nowadays in Kali Yuga, the Varna Shankara is even usse bhi niche gir gaya hai. There is only on the look and the financial background jiske upar shaadi tair hoti hai. So right now is everywhere is Varna Shankara. So there is a lot of chaos in the society, which Krishna has already anticipated. Any questions in this one? प्रभु उस टाइम Yes. पे कुंडली मैचिंग होती थी प्रभु जी? यस सॉरी. अरे यस माता जी, उस टाइम पे तो क्या कहना, आप रामायण को उठा के देख लीजिए. तो प्रभु जी वो स्वयंवर और सब कुछ होता था, तो स्वयंवर, उसमें सारे जितने राजकुमार आते थे सबकी कुंडली. हाँ हाँ, जस्ट जस्ट यस यस यस, जब स्वयंवर होता था तब इनविटेशन बेस्ड होता था, राइट. they were identify majority of the people based on what from where they are coming. वो बोलते हैं ना एक क्षत्रिय के अंदर क्षत्रिय का ही खून पैदा होगा, is very natural at that time because the upbringing is like that quality. क्योंकि जब शुरुआत हुई जैसे राम और सीता हुआ, राइट, राम और सीता का स्वयंवर हुआ, उससे पहले महर्षि Vishwamitra, he knows everything about Sita, he knows everything about Ram, and he knows that there will be a perfect match. That's the reason he bring Ram to. बट स्वयंवर में तो रावण भी आए थे. आए थे ना, पर हुआ नहीं था. जैसा मैंने कहा, सस्पेंस स्टोरी को हाँ. कैरी करने के लिए सब कैरेक्टर रखे जाते हैं, बट इट इज ऑलरेडी डिसाइड. अब रावण आया था लेकिन रावण के साथ शादी तो नहीं हुई ना, शादी तो राम के साथ ही हुई, राइट. तो सर यानी कुंडली मैच करते थे तो भी सबको बुलाते थे, अब वो ज्यादा हो रहा है. क्या कुंडली सबकी मैच करते थे? नहीं, कुंडली सबकी मैच नहीं करते थे. दे आर कॉलिंग द पीपल हु इज क्वालिफाइड बिकॉज दे नो द किंग, एवरीथिंग दे नो अबाउट देम. अब सिंपल सी एग्जांपल, मुझे अगर क्या बोलते हैं, I know you want to recruit someone. आप बोलोगे नहीं, MBA कैटेगरी का होना चाहिए, यानी सारे क्षत्रिय ही थे. I got that point. But तो कुंडली का तो अब जैसे कुंडली मैच तब करवानी पड़ती है जब यू डोंट नो व्हाट गुना ही इज बिलोंगिंग. अगर मैंने अपने आप को एस्टैब्लिश कर लिया, इफ आई एम एस्टैब्लिशिंग माई सेल्फ एज अ गुड कंसल्टेंट, राइट, डू यू वांट टू चेक माई कुंडली वेदर आई हैव ब्राह्मणिकल क्वालिटीज और नॉट. अगर मैं आपके घर पे, अगर मेरे आप आए थे, राइट, व्हेन वी कॉल द गुड ब्राह्मण एंड द हाउस, ही इज परफॉर्मिंग द यज्ञ परफेक्टली, you know that he is performing. Do you need to check his horoscope whether he is having a brahmanical quality or not? No.
नहीं, राइट? अगर मैं किसी शूरवीर को लेके आऊं, से फॉर एग्जांपल किसी परमवीर चक्र योद्धा को मैं लेके आऊं, आई एम टॉकिंग टू हिम, डू आई नीड टू चेक वेदर दिस परमवीर चक्र योद्धा हैज अ क्षत्रिय क्वालिटी और नॉट? नो। अगर उसके पास क्षत्रिय क्वालिटी है तो ही उसने परमवीर चक्र लिया है। अगर कोई राजा को मैं इनवाइट कर रहा हूँ, किसी कुमार को मैं इनवाइट कर रहा हूँ, अगर उसने ऑलरेडी इतने सारे लेजेंड गाड़ दिए हैं, मुझे पता है ही इज ऑलरेडी हैविंग अ क्षत्रिय नेचर। क्षत्रिय नेचर उसके उसके गुण है, उसके बाहर आ रहा है छलक छलक के। आई डोंट नीड टू चेक द होरोस्कोप फॉर चेकिंग हिज क्वालिटी। हॉरोस्कोप अभी इतना मैंडेटरी क्यों हो गया? बिकॉज वी डोंट नो हाउ ही इज बिहेविंग, वी डोंट नो, हमें पता ही नहीं उसके बारे में। उस समय ऐसा नहीं होता था, उस समय होता था कि ये क्या क्या कर रहा है, दो देयर इज नो इंटरनेट, नो सोशल मीडिया, बट दे नो एवरीथिंग। राम ने अहिल्या को तारी, उस समय कोई फेसबुक पोस्ट नहीं था कि उन्होंने पोस्ट किया, बट एक केवट जो वहां पे बैठा था, केवट नोज दैट राम हैज टच द शीला, और उसने अहिल्या को तार दिया। इसीलिए उसने राम जी के चरण पखारे, ताकि भैया आपके चरण को पहले मैं अपने कठोते में पानी से अपना चरणामृत लूंगा, अगर मैं सही रहा तो मैं ही आपको अपने नाव पे चढ़ने दूंगा। अब सोचिए, एवरीवन नोइंग एवरीथिंग दो देयर वाज नो सोशल मीडिया। तो वहां पे जब कोई फॉलो कर रहा है, जब कोई राजा है, तो दे डोंट नीड टू चेक हिज हॉरोस्कोप बिकॉज दे नो दैट ही हैज अ क्षत्रिय क्वालिटी। और अगर कोई राजा का लड़का क्षत्रिय क्वालिटी में नहीं होता तो उसको फिर सप्रेस ही किया जाता था। दे वोंट इवन इनवाइट फॉर ऑल दिस थिंग्स। ये ख्वाती उनकी रहती है। वी नीड टू चेक द डॉक्यूमेंट व्हेन वी डोंट नो हु इज ही, राइट? सो कुंडली आप तब मैच करोगे जब आपको उसके गुणों के बारे में पता नहीं है। जी। But then Prabhu, like you said, like Manav Yoni and like Rakshas Yoni and Dev Yoni. So anyone, like for example, let's say anyone from the Kshatriya can be in any of these three, right? क्या He क्या could क्या? be Manav. So for example, like we have one, someone is Brahman, Kshatriya, Shudra, right? Similarly, I cannot hear you. Speak very low. There is a lot of background noise. Speak slowly. Yeah. can you hear me, Prabhu, now? Yeah, I can hear you, but there is a lot of echoing coming. Speak slowly. Yeah. Okay. So you said like there was a preference कि भाई जो क्षत्रिय की शादी है वो क्षत्रिय से हो रही, तो उसमें वो बुलाते थे। लेकिन अब क्षत्रिय के अंदर भी कोई मानव योनि में हो सकता है, कोई देव योनि में हो सकता है, कोई राक्षस योनि में हो सकता है, राइट? तो वो कैसे पता चलेगा कि वो किस योनि का है? नहीं तो सारे फाइट, क्षत्रियों को बुला, हाँ तो होती थी ना फाइटिंग। फिर ऐसा थोड़ी कहा कि पहले जमाने में फाइटिंग ही नहीं होती थी। ये हस्बैंड वाइफिंग की फाइटिंग तो हमेशा से होती है, वो होती है। So within Kshatriya, like you can marry like a Dev Yoni and Rakshas Yoni. You cannot, it's not a advisable, but you do that and then you face the consequences, right? बट जनरली देखो, हर एक के हायरार्की होती है, राइट? द हायरार्की इन द सेंस की जो बेसिक नेचर होता है, अगर वो मैच कर जाता है तो देखो, अभी भी यू एंड मी डजंट हैव अ 36 गुना मैच, राइट? बट इफ द बेसिक थिंग इज मैचिंग, देन हमारी गाड़ी चल जाएगी। सिमिलरली एट दैट टाइम ऑल्सो, अगर बेसिक गुणा अगर मैच कर रहा है, अगर आप ब्राह्मण ब्राह्मण के साथ है, राइट, तो उनका जो बेसिक चीज है वो क्या है? इंटेलेक्चुअल। अगर इंटेलेक्चुअल मैच कर रहा है तो थोड़ा बहुत देखो, बहस तो जहाँ पे दो इंसान रहेंगे, बर्तन की आवाज तो आएगी, थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे हर रिश्ते में होता ही रहता है। बट इफ द मेजर पार्ट इज बीन एड्रेस्ड, देन माइनर कैन बी जस्ट फॉलो इट, राइट? तो ऐसा नहीं है कि भैया झगड़े होंगे नहीं, उस समय पे झगड़े होते ही नहीं थे, नहीं होते थे। There are the sequence where husband try to conspire for the wife and wife conspire for the husband. It happens. बट तब भी बहुत सारे लोग नहीं करते थे। अब सिंपल सी एग्जांपल, ये भागवत गीता जो है, भागवत गीता या महाभारत, अगर उसको पद्मावती का अगर आपने पूरा मूवी देखा होगा, राइट? पद्मावती की मूवी में क्या किया राणा रतन सिंह ने? ही वॉज बिकमिंग टू गुड फॉर दिस पर्सन। कृष्णा नेवर सेड दैट। कृष्णा सेज दैट अगर अधर्मी है तो उसको अधर्मी तरीके से ही ट्रीट करना चाहिए। राणा रतन सिंह अधर्मी के साथ धर्म करने गया, तो इसलिए वो मारा गया खिलजी के साथ। अगर उसने महाभारत और गीता को फॉलो किया होता, he would understand that खिलजी is that kind of person, I should never trust him. अगर उसने उसी टाइम पे खिलजी का वध कर दिया होता, the thing would be finished. So we don't follow the rituals or we don't follow the shastra 100%. If we don't follow, even that time there is a consequences and there is a issue happens. Even this time also issue happens. But यहाँ पे बहुत ज्यादा खिचड़ी मची चुकी है ऑलरेडी, तो जितना कर सको उतना करो।
नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। अब किसी को लड़की ही नहीं मिल रही है, किसी को लड़का ही नहीं मिल रहा, तो उसको तो क्या राक्षस गण, क्या मनुष्य गण, उसको अगर शादी करनी है तो भैया किसी को भी लेके शादी करके आ जाओ, राइट। इज दैट जी प्रभु। yes, okay. Any further question in this? So I think we have picked up the very sensitive topics, everyone try to understand. तो प्रभु जी उस टाइम पे डिवोर्स होते ही नहीं थे? नहीं माता जी, डिवोर्स नहीं होते थे क्योंकि डिवोर्स का प्रोविधान ही नहीं था। ओके। क्योंकि राजा, बहुत सारे राजा बहुत सारी रानी ले आते थे। हाँ, तो जहाँ पे इसीलिए झगड़ने का टाइम देखो, एक ही आदमी दिखता है ना सुबह शाम, तो झगड़ा भी इतना होता है। वहां पे वो बेचारा 4-5 रानियों के साथ रहता था, तो वैसे ही 2 दिन में मिल रहा है तो क्या झगड़ा करेगा, तो चलो हो गया झगड़े तो भी। रानियों में जेलसी नहीं, कुछ नहीं। हाँ, They are- that's नहीं, वो भी होती थी, that used to be there, it's not never be like that, there is always fighting, but वहां पे एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी रहती थी उस समय। आप किसी भी देखिए, आप राजा दशरथ, माता कैकेयी, माता सुमित्रा और माता कौशल्या देख लीजिए, राइट, they were working as a very close unit, बट ऐसा नहीं है कि यानी उसके अंदर आपके मोरल्स और वैल्यू उतने अच्छे डेवलप्ड होने भी चाहिए कि you have that capacity to look beyond than that. You look beyond the jealousy and all this thing. You understand the situation why they got married. It's not that they got married just because the sake of the marriage, like how we are doing right now. हम अभी क्या करते हैं कि एक दूसरे को लाइक किया, हमें प्यार हो गया, that's what we say that, right? And we got married. उस समय पे जो था वो शादी सिर्फ इसकी वजह से नहीं होती थी कि राजा ने रानी को लाइक किया. There are so many political equation has to be set it up. उसको सेटल करने के लिए भी शादियां की जाती थी. और ये रानी सिंस दे केम फ्रॉम द क्षत्रिय बैकग्राउंड, सो दे अंडरस्टैंड दिस पॉलिटिकल वैल्यूज वेरी नाइसली. उसको पता है कि राजा ने इससे शादी क्यों की, देयर इज अ पॉलिटिकल रीजन बिहाइंड इट, तो वो उसको डाइजेस्ट करके उसके ऊपर चलती थी वो, बिकॉज शी कम्स टू द क्षत्रिय वर्ण. लेकिन अगर वो रानी शूद्र वर्ण से आ रही है तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा. शी इज गोना कीप ऑन फाइटिंग, व्हाई यू हैव डन, व्हाई यू हैव डन, व्हाई यू हैव डन. शी इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट. आप समझ रहे हो? दैट्स द रीजन वर्ण इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उस चीज को, इक्वेशन को समझने के लिए भी आपको वो क्षमता चाहिए, वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड चाहिए जो उसने बचपन से समझा है, सीखा है शास्त्र को. इसीलिए दे कैन गो अलोंग वेरी नाइसली एंड स्मूथली. वरना चित्रकेतु का एग्जांपल आता है श्रीमद् भागवतम में. चित्रकेतु जो थे, चित्रकेतु के पुत्र को उसकी जो दूसरी जो पटरानियां थी, उन्होंने जहर दे के मार दिया. दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल इन श्रीमद् भागवतम. Okay. Any further points on that? We'll move forward. Okay. 3.25. तो भगवान कहते हैं कि सक्ता कर्मणि या विद्वंसो, या सक्ता कर्मणि या विद्वंसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद विद्वंस तत्सक्तास चिकीर्षुर लोक संग्रहम. कि जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें. दिस इज व्हाट वी डिस्कस इन द बिगिनिंग, कि भगवान हमें क्या कह रहे हैं कि दो यू बिकेम द डिवोटी, दो यू नो एवरीथिंग, बट the difference between the devotees and non devotees, the अज्ञानी versus ज्ञानी is, दोनों कार्य आपको एक तरीके से ही करते दिखेंगे, दोनों एक तरीका ही कार्य करेंगे, लेकिन दोनों के बीच में जो कॉन्शियसनेस है उसका डिफरेंस रहेगा. कि जिस प्रकार अज्ञानी जी फल की आसक्ति के लिए कार्य करते हैं, उस फल को भोगने के लिए या उस फल को पाने के लिए वो कार्य करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो विद्वान जन है, उनको कैसे कार्य करना चाहिए, वो कार्य को करने के लिए अनासक्त हुए बिना उस फल से. प्रभुपाद इसके अंदर कहते हैं कि if someone wants to read this. I will read it. Yes. A person in Krishna consciousness and a person not in Krishna consciousness are differentiated by different desires. A Krishna conscious person does not do anything which is not conducive to development. Yeah. Conducive to development of Krishna consciousness. He may even act exactly like the ignorant person who is too much
attached to material activities, but one is engaged in such activities for the satisfaction of his sense gratification, whereas the other is engaged for the satisfaction of Krishna. Therefore, the Krishna conscious person is required to show the people how to act and how to engage the results of action for the purpose of Krishna consciousness. वेरी नाइस. सो यहाँ पे प्रभुपाद क्या समझा रहा है? भगवान कह रहे हैं कि दोनों काम कर रहे हैं, एक ही तरीके का काम कर रहे हैं, लेकिन दोनों की कॉन्शियसनेस में अंतर रहता है. वन इज एंगेज इन सच एक्टिविटी फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज सेंस ग्रेटिफिकेशन. कोई एक इंसान काम कर रहा है, 24 घंटे काम कर रहा है. क्यों कर रहा है? क्योंकि उससे उसको धन चाहिए और उस धन को उपयोग करके वो उसे भोगेगा. वो उसी के लिए, उसका जीवन उसी के लिए, सुबह उठ के वही करेगा कि अच्छा मुझे ये करूंगा तो और इतना धन मिलेगा, ये करूंगा तो और इतना धन मिलेगा, ये करूंगा और इतना धन मिलेगा, फिर ये धन के बाद क्या करूंगा, हाँ मैं इसे ये खरीदूंगा और फिर इसे भोगूंगा. दैट इज व्हाट द बेसिक थिंग इज. बट उसके सामने जो एक भक्त है, एक कृष्णा कॉन्शियसनेस पर्सन है, वो क्यों काम करेगा? वो भी काम करेगा. He will also work, he will also do overtime, he will also think, but he is doing for the sake of doing it, not for the sense gratification. जैसे सिंपल एग्जांपल, बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र के ऊपर दो पार्टीज थी, जिसको एक लीड कर रहे थे दुर्योधन और दूसरे को लीड कर रहे थे महाराज युधिष्ठिर. वैसे देखा जाए तो दोनों फाइट कर रहे थे, दोनों युद्ध के लिए तत्पर थे, और दोनों किसके लिए फाइट कर रहे थे? सिंहासन के लिए, हस्तिनापुर के लिए. लेकिन दोनों में अंतर था. दुर्योधन फाइट कर रहा था जस्ट फॉर द एंजॉइंग द सिंहासन, जबकि इस तरफ युधिष्ठिर महाराज फाइट कर रहे थे धर्म की स्थापना करने के लिए, धर्म के जरिए से लोगों का भला करने के लिए, लोगों को अच्छी तरह से एक सुराज्य देने के लिए. सो दे वर बोथ फाइटिंग, दे वर बोथ ऑन द बैटलफील्ड, दे वर बोथ डूइंग फॉर द सिंहासन. बट एक तरफ ज्ञानी थे, एक तरफ भक्त थे महाराज युधिष्ठिर, एक जबकि दूसरी तरफ एक अज्ञानी थे, एक लालची इंसान था जो सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए ही युद्ध कर रहा था. सो दैट इज व्हाट इन दिस भगवान ट्राई टू एक्सप्लेन कि जिस प्रकार अज्ञानी जीव फल की आसक्ति के लिए कार्य करते हैं, दुर्योधन का एग्जांपल, उसी तरह विद्वान जीवों को चाहिए कि वो लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए, जैसे युधिष्ठिर महाराज, आसक्त हुए बिना कार्य करें. And this is what the last look. Any questions so far in this one? Everyone understood this, right? Because we are concluding our today's Bhagavad Gita session, and then we'll move forward to this, what you call the question, if Mayur Prabhu is present. Should we go to the question answer? माधुरी हरस. So देखिए, उनका क्वेश्चन ये था कि लास्ट टाइम he has asked, what he has asked that उनको जानना था कि ये जो सहीचरी, अनुचरी, कैंकरी, ये क्या है? When I think I refer something by mistake in last of the session. Why I'm saying by mistake is because we are still very premature to discuss this bhava, but still I will try to touch little bit on that one. देखिए, भगवान की भक्ति अलग अलग भाव से की जाती है. And as you can see on the screen कि there are 5 kinds of bhav in which you can serve the Lord. First is शांत. शांत का मतलब है कि आप भगवान के पास नहीं जाते सेवा करने के लिए, लेकिन भगवान आपके पास आते हैं सेवा ग्रहण करने के लिए, जिसमें आते हैं से गोवर्धन. भगवान हर दिन गोवर्धन के ऊपर जाते हैं, और जब भगवान गोवर्धन पहुंच जाते हैं तो गोवर्धन फिर भगवान की सेवा करते हैं, अपने भगवान की इच्छा के अनुसार ऋतुओं को चेंज कर देना, भगवान की इच्छा के अनुसार हवाओं की दिशा बदल देना, भगवान को जब जिस तरीके का जल चाहिए उस जल का टेम्परेचर ऊपर नीचे कर देना. सो ये सब जो थे गोवर्धन करते थे शांत भाव में, लेकिन उस सेवा को ग्रहण करने के लिए भगवान को खुद गोवर्धन चल के आना पड़ता था. से फॉर एग्जांपल अ काउच, अगर आपको काउच को एंजॉय करना है, आप अपने सोफा को एंजॉय करना चाहते हो, तो सोफा आपके पास नहीं आएगा, आपको सोफा के पास जाना पड़ेगा. सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ शांत रस. उसके ऊपर एक आता है दास्य रस. दास्य रस में क्या होता है कि आप भगवान के एक निर्मल सेवक रहते हैं, भगवान को जो चाहिए जैसे चाहिए आप भगवान को प्रदान करते हैं, जिसमें आते हैं हनुमान जी. दास्य का एग्जाम्पल है हनुमान जी का. तीसरा है सांख्य रस, जो दास्य के ऊपर आता है.
सांख्य अर्थात आप भगवान की सेवा करते हो एक मित्र के तरीके से। मैं हर शब्द में सेवा का प्रयोग कर रहा हूं, क्योंकि आप चाहे किसी भी भाव में हो पर आप भगवान की सेवा ही करते हो। तो इन सब में आप कोई भी रस में भगवान की सेवा करो, इसमें जो दास्य है ना, वो सटल है। वो भाव आपको हर एक में मिलेगा। आप शांत है तो भी भगवान की सेवा ही कर रहे हो, तो दास्य आया उसके अंदर। आप दास्य है तो दास्य है ही। अगर आप सांख्य है, आप भगवान के मित्र हो, तो भी आप भगवान की एक तरीके से सेवा ही कर रहे हो। भगवान को लाड़ लगा के, भगवान के साथ खेल के, भगवान को चाहिए वैसे आप खेल करो, भगवान को खिलाओ, भगवान को मनोरंजन दो, वो भी एक सेवा ही हुई। तो यहाँ पे भी दास्य जो है वो सटल है। उसके ऊपर है वात्सल्य। वात्सल्य अर्थात यशोदा माता। सॉरी, सांख्य के हमने एग्जाम्पल लिया, जैसे हुआ अपने सुदामा जी, अर्जुन, ये सब अर्जुन। भगवान, हाँ, ये भगवान के सांख्य रस के भक्त हैं। उसके ऊपर आता है भगवान के वात्सल्य रस के भक्त, जिसमें आते हैं माता यशोदा। तो जो भगवान को बालक की तरीके से पूछती है, जैसे पुष्टि संप्रदाय, वल्लभाचार्य संप्रदाय, उसमें बाल गोपाल की सेवा है। तो जिसमें आप भगवान को एक छोटा बच्चा समझ के उसकी आव भगत कर दी है, लेकिन उसके अंदर भी आप भगवान की सेवा ही करते हैं, तो दास्य उसके अंदर भी है। उसके ऊपर जो आता है वो माधुर्य है। माधुर्य अर्थात जिसमें भगवान के आप कॉन्जुगल पार्टनर बनते हो, जिसमें आती है राधा रानी, जिसमें आती है सखियां, जिसमें आती है गोपियां, जिसमें आती है भगवान की रानियां, कि जिसमें भगवान का आपका एक्सेस है भगवान के बेडरूम तक। वात्सल्य का एक्सेस है भगवान के घर तक। सांख्य का एक्सेस है भगवान खेले या फिर भगवान की कुछ हद तक भगवान के घर में, राइट। सो हर एक रस के हिसाब से, हर एक भाव के हिसाब से आपका जो एक्सेस है भगवान को, भगवान के लिए, वो बढ़ते जाता है। तो इसमें जो टॉप मोस्ट एक्सेस या टॉप मोस्ट रस जो बताया गया है, जो टॉप मोस्ट भाव बताया गया है, उसे माधुर्य कहा गया है। अब माधुर्य में भी 3 कैटेगरीज हैं। एक होता है कुंज, एक होता है निवृत्त निकुंज, सॉरी, एक होता है कुंज, एक होता है निकुंज, और तीसरा होता है निवृत्त निकुंज। ये भी अलग अलग सर्कल है। माधुर्य अर्थात कुंज, यानी जितने माधुर्य भक्त भाव के भक्त हैं उन सबको कुंज का एक्सेस तो होता है। कुंज अर्थात भगवान का कोर्टयार्ड, जिसे हम वृंदावन कहेंगे। लेकिन फिर उसके अंदर एक निकुंज होता है। निकुंज के अंदर हर माधुर्य रस के भक्त को एक्सेस नहीं होता। निकुंज के अंदर जो एक्सेस होता है वो भगवान की अष्ट सखियों को ही रहता है। दे कैन ओनली गो इनटू द निकुंज बिकॉज इट इज मोर पर्सनल, इट इज मोर सेक्लूडेड देन द कुंज। कि वृंदावन के अंदर भी जो एक भाव है, एक रस है, उसे निकुंज रस कहा गया है। और फिर निकुंज के अंदर जो है, जहां पे सिर्फ 1 2 3 4 5 लोग ही उसको टच कर सकते हैं। एक तो भगवान खुद, एक तो राधा रानी, तीसरी ललिता सखी, और चौथी विशाखा सखी। ये जो ललिता सखी और विशाखा सखी है, वो कुंज के गेट पे गेट कीपर का काम करती है। और फिर निवृत्त निकुंज के गेट पे गेट कीपर का काम करती है। एंड हु शुड एंटर इनसाइड, दैट इज बीन कंट्रोल्ड बाय देम। एज ऑफ नाउ, एज ऑफ द नॉर्मल प्रोटोकॉल, ओनली राधा एंड कृष्णा कैन इज इनसाइड द निवृत्त निकुंज। उसके बाहर ललिता और विशाखा सखी पहरा देती है। और लेकिन राधा और कृष्णा के अलावा और एक भी पर्सनालिटी होती है जो निवृत्त निकुंज में रहती है। एनी गेस? बांसुरी प्रभु। बांसुरी, यस प्रभु। बंसुरी। तो भगवान की जो मुरली है वो राधा और कृष्णा के साथ निवृत्त निकुंज में रहती है। सो अगेन, माधुर्य इज द टॉप मोस्ट, लेकिन माधुर्य के अंदर भी अलग अलग श्रेणी होती है, अलग अलग, आई वुड नॉट से कैटेगरी, बट अलग अलग भाव होता है। मैं ये इसलिए डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ बिकॉज देन आई नो सम ऑफ द पीपल वी ऑलवेज आइडेंटिफाई, अच्छा इससे ऊपर ये है तो मुझे फिर इसकी भक्ति करनी है, अच्छा इसके ऊपर ये भाव है तो मुझे इसकी भक्ति करनी है। मीन्स वी फील दैट द अदर भाव इज सबॉर्डिनेटेड, या फिर वो किसी निम्न कक्षा का है। नहीं, आप कौन सा भाव की भक्ति कर सकते हो वो आपके कैरेक्टर के ऊपर या आपके कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर डिपेंड करता है। और वो भाव सिर्फ आपको अपने गुरु प्रदान करते हैं, आप चूज नहीं कर सकते। उसको पता है कि आपका भाव कौन सा है और फिर वो आपको वो भाव प्रदान करते हैं और उस हिसाब से आप भाव की भक्ति करते हो। तो जैसा मैंने लास्ट टाइम कहा था कि इसके अंदर
जो कुंज के अंदर निकुंज और उसके अंदर निवृत्त निकुंज, जो कुंज कहा गया है, जिसे वृंदावन कहा गया है, उसमें भी 3 प्रकार के माधुर्य भाव के भक्त होते हैं। एक होते हैं सहिचरी, दूसरे होते हैं अनुचरी या मंजरी जिसे कहा गया है, और तीसरे होते हैं कैंकरी। Now I am not going to explain further than this because it is too early for us. We won't able to understand anything, and neither I am allowed to speak on all this thing. But I hope this will give you some sort of information which you have asked in our last question. Is there any question in this one or comments? So Sahichari, Anuchari, and Kankari. In Madhuri also there are 3 categories of bhakta. प्रभु, आपने वात्सल्य भाव का बताया, जैसे यशोदा मैया है और उनको जो है उनके घर तक जो है उनका एक्सेस होता है, तो नहीं क्या इन द सेंस कि मेरा कहने का तात्पर्य था कि देखो, जब सिंपल एग्जांपल, आप सोफे पे बैठे हो, वो शांत रस का भक्त है, ठीक है, आपका जो दास है जो आया कि बोले सर मुझे आपसे काम है, आप सोफे से उठ के उसके साथ मिलने जाओगे, राइट? तो थोड़ा सा उसको एक्सेस ज्यादा मिल गया। अगर आप अपने सेवक के साथ खड़े हो, लेकिन आपका अगर मित्र आ गया, बोले चलो मेगा खेलने चलना है, तो आप ठीक है भाई हम तेरे से बाद में बात करता हूँ, अपने मित्र को पहले अटेंड कर, या उसका मित्र का फोन आया, आपने उसको अटेंड किया, तू 1 मिनट रुक, तो दासे से ऊपर थोड़ा सांख्या को प्रोटोकॉल मींस प्रायोरिटी मिलती है। जब आपने मित्र के साथ खेल रहे हो, कुछ कर रहे हो, लेकिन मम्मी ने आवाज लगाई चलो राम घर में आओ खाना खाने के लिए, वो अपने मित्र को छोड़ के भाग के आ जाएगा। तो वात्सल्य को थोड़ा सा एक्सेस ज्यादा मिल गया। लेकिन जब अपनी माता के साथ होते हो, अगर उसके सामने आपकी गर्लफ्रेंड का मैसेज आता है, कुछ होता है, अगर उसने टेक्स्ट किया यही सब, तो आप कुछ ना कुछ बहाना बना के आप उससे बात कर लोगे, तो थोड़ा उसका एक्सेस बढ़ जाता है माधुर्य का, क्योंकि माधुर्य हैज एक्सेस ऑफ द बेडरूम। वो आप there is a conjugal relationship between the husband and the wife, between the lover and the girlfriend. So though they respect the mother and father more, but if you see the access wise, the wife has more access over the husband than the mother is carrying many times, right? So madhurya has more access. So ऐसा नहीं है कि उनका घर सबका ही घर तक एक्सेस है, but my point of saying is they have a different priorities. yes प्रभु, Is that what the, yeah, go ahead. yeah, so क्या पूतना भी उसी वात्सल्य भाव में आएगी? हाँ, ये तो बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, भगवान को ना भावग्राही जनार्दन कहा गया है, वो बहुत दयालु है। इसीलिए जब श्रीमद् भागवतम सुखदेव गोस्वामी का जब जन्म हुआ, तब वो जन्म से ही ब्रह्म ज्ञानी थे। आपको सबको पता है ये कथा कि जब सुखदेव गोस्वामी व्यासदेव के पुत्र हैं, जिन्होंने पहली बार श्रीमद् भागवतम की कथा परीक्षित महाराज से कही, जब सुखदेव गोस्वामी माता के गर्भ में थे, तभी वो ब्रह्म ज्ञानी थे, अंदर गर्भ के अंदर ही, तो उनको बाहर नहीं आना था, गर्भ के बाहर, ही डोंट वांट टू कम आउट ऑफ इट। तो कितने साल लग गए थे? 16 साल। 16 साल तक वो माता के गर्भ में थे, और उसकी माता की हालत अबाउट टू डाई वैसी थी। तो यहाँ पे व्यासदेव ने उसको कहा कि बेटा यू हैव टू कम आउट बिकॉज योर मदर इज गोना डाई। ही सेज दैट आई कैन कम आउट ओनली बट देयर इज अ कंडीशन। तो बोले क्या कंडीशन है? कहा कि मैं बाहर आते ही भगवान कृष्ण की जो माया है मुझे घेर लेगी, तो आप द्वारिका जाओ, भगवान कृष्ण से 3 बार हामी भरवाओ कि मेरी उनकी माया का जो असर है मेरे ऊपर नहीं होगा। इफ ही सेज दिस 3 टाइम देन ओनली आई विल कम। तो व्यासदेव जी ने कृष्ण से कहा, कृष्ण ने 3 बार प्रॉमिस दिया, एंड एज सुन एज ही टेक अ बर्थ, एज सुन एज ही केम आउट, वो तो माया का असर ही उनपे नहीं हुआ। दैट मीन्स सीधे वो जंगल में चले गए, बिकॉज ही वॉज ब्रह्म ज्ञानी। जब ही वेंट टू जंगल, अब उनको वापस कैसे लाया जाए? व्यासदेव ने यहाँ पे श्रीमद् भागवतम की रचना कर दी थी, लेकिन उसके जो पात्र थे जिसको वो रस पिलाए, वो सुखदेव गोस्वामी थे, लेकिन सुखदेव गोस्वामी तो ब्रह्मज्ञानी बन के जंगल में चले गए थे। नाउ हाउ टू गेट हिम बैक? तो व्यासदेव ने क्या किया, उन्हें 2 श्लोक समझाए। व्यासदेव ने अपने शिष्यों को बुलाया और उनको 2 श्लोक समझाए, मीन्स पढ़ाए, कि बोले जहां भी तुम्हें सुखदेव गोस्वामी दिखे, उसके आसपास जाके 2 श्लोकों का उच्चारण कर देना। तो बोले कौन से श्लोक? उसमें पहला जो है, तो बरहम पीड़ा नटवर प्रभु, जिसमें भगवान के श्रृंगार का वर्णन किया गया है कि हाउ ब्यूटीफुल कृष्ण इज। तो इंसान किसी से आकर्षित होता है, तो उसके लिए 2 चीजें होती है। पहला तो उसका स्वरूप, जिसने पहले श्लोक में बरहम पीड़ा नटवर प्रभु
कर्णयो कर्णिकारम। वो जो श्लोक है उसके अंदर सुखदेव गोस्वामी ने व्यासदेव ने भगवान के स्वरूप का वर्णन किया। लेकिन ओनली स्वरूप कैन नॉट बी लास्ट फॉर द अट्रैक्शन। आप किसी से अट्रैक्ट हो जाओ, लेकिन अगर उनका स्वभाव खराब हो तो अट्रैक्शन बहुत कम समय रहता है। इसीलिए उन्होंने दूसरा श्लोक जो है श्रीमद् भागवतम का, वो उनको समझाया जिसमें भगवान के स्वभाव का वर्णन है, और उस स्वभाव में इस बात का जिक्र आता है जो आपने पूछा। तो वहां पे व्यासदेव लिखते हैं कि अहो बकियम स्तनकालकूटम जिघम्पि यस्या पयादपि असाध्वी लेभे गतिम धात्री उचितम ततोन्यम किंवा दयालु शरणम व्रजेमा। अर्थात इस श्लोक का मतलब है कि अहो बकियम स्तनकालकूटम, जो बगला है, मीन्स व्हाट यू कॉल, I don't know what you call in English, you can correct me. हमारे गुजराती में उसे बगला कहा जाता है। Whoever Gujarati understand, उसको दम का प्रतीक माना गया है। He is a fraud. So जो दम का प्रतीक है बगला, वैसा ही रूप धारण करके जो आई थी अहो बकियम स्तन कालकुटम, अपने स्तन के ऊपर कालकुट विष लगा के, जिगम्पि यस्या पयादपि असाध्वी, वो एक साध्वी जैसे अपने आप को कैरी ओवर कर रही थी। लेकिन भगवान ने क्या किया? लेभे गतिम धात्री उचितम तत्वन्यम, उनको कैसे मुक्ति दी? अपनी माता जैसी भगवान ने मुक्ति दी। क्योंकि भगवान क्या है? भावग्राही जनार्दन। उसने देखा कि ये मुझे जहर पिलाने आई है, लेकिन कार्य कौन सा किया उसने? माता का। तो दो शी केम एज अ मदर, उसने चाहे भगवान का, उसने एक माता का दम ही किया, लेकिन उस भाव को उसने प्रकट करके मुझे दूध पिलाने तो आई, चाहे दूध के बदले जहर पिलाया, पर उसने क्रिया तो एक माता वाली की ना। तो भगवान तो भावग्राही जनार्दन है, तो उसने क्या किया? उसको लेभे गतिम धात्री उचितम तत्वम, उसने अपनी माता जैसी गति इस पुतना को प्रदान की। और फिर व्यासदेव लिखते हैं कि किंवा दयालु शरणम व्रजेमा, इससे दयालु कौन होगा जिसकी मैं शरण ग्रहण करूं। और जब ये दो श्लोक सुने सुखदेव गोस्वामी ने, तो सुखदेव गोस्वामी खड़े हो गए, बोले कौन है इतना ब्यूटीफुल, कौन है इतना अच्छा स्वभाव वाला, मुझे बताओ। तो शिष्य उससे कहते हैं कि अगर आपको जानना है तो आप अपने पिता के पास चलिए, उनके पास उसका पूरा लिखा जोखा है। Then Sukdev Goswami came from the forest, surrendered to Vyasdev, and then Vyasdev gave him a विधिवत शिक्षा of श्रीमद् भागवतम। और उसी श्रीमद् भागवतम को सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को गंगा तट के ऊपर 7 दिन तक सुनाते हैं और उनको मुक्ति प्रदान करते हैं। तो यस, पूतना भी वात्सल्य भाव को पकड़ के भगवान के निज धाम गई। चाहे उसका बिहेवियर अच्छा नहीं था, लेकिन भगवान ने भाव की मर्यादा रखी। भगवान तो भावग्राही है, तो फिर उन्होंने पूतना को भी वही गति प्रदान की। इसीलिए भगवान की भक्ति जो है वो बहुत अच्छा बिजनेस है। इट्स अ वेरी गुड डील। आप उसमें लूज कुछ नहीं करते हो। चाहे आप कितने नीचे से नीचे स्तर का कार्य करो, अगर आपका भाव थोड़ा भी शुद्ध हो, आपके क्रिया थोड़ी भी शुद्ध हो, तो भगवान आज नहीं तो कल आपको उठा ही लेंगे। जैसे मैंने कहा, कृष्ण के अंदर का जो नीचे का जो कांटा है, आपने किसी भी तरह से भगवान को पकड़ा तो नीचे का जो कांटा है वो आपको इस संसार से खींच लेगा बाहर। इज दैट व्हाट योर क्वेश्चन वाज? Yes, Prabhu. Any more comments? Because we are ending our session for today. I think we are good. Okay. Nice. कितना अच्छा लग रहा है कि मेरे अलावा सबके फोटो ब्लैंक है। Everyone has switch off their camera. Okay. Then Prabhu, you will see other people also in the frame. Daddy. Yes, Ram. Okay, so we'll wrap up our session with a chanting. Any comments or question? आप पूछ सकते हैं. Then we'll do the chanting. Okay. So Purvi Pragya Devi is gonna count and we'll chant. So before chanting, we should do this pranay mantra. Jai Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar, Srivasadi, Gaura Bhakta Vrinda.
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna. Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare YouTube पर ये Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. हरि बोल। आवाज नहीं आ रहा। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा से मेरे पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो Thank you everyone for joining. Hari Bol. Hari Bol. बोल Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram. राम राम हरि हरि। हरे कृष्णा जटवन प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। Hare Krishna.